आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज पूरे दुनिया की तरह सरहदी ज़िला पुंछ में भी आलमी यौम एड्स यानी HIV का दिन मनाया गया। इस दौरान राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ में तकरीबात का इनेकाद किया गया। एक तकरीब ANMT स्कूल में मुनक्कद की गई, जहां पर CMO पुंछ के अलावा डिप्टी CMO पुंछ और दीगर अमला ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों की जानिब से रंगोलियां बनाई गई, जबकि उन्होंने तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान खुसूसी खिताब करते हुए CMO पुंछ ने आज के दिन पर तफसीली रोशनी डाली। Thank you. My dear students, a very warm good afternoon to everyone. Good afternoon. As you all know, today is the 1st of December and we will gather here for what? For what? It's a World AIDS Day. Every year we celebrate the World AIDS Day with a new theme. And Government of India and the WHO give this year theme, Let Community Leads. Did you know why every year WHO or our Government of India going to change the theme? Because theme is the goal which we have to achieve by doing a lot many activities and make sure that the goal of the theme should be achieved. Let community lead mean it's a cause. It's what the community did for the people who lost their life with this dangerous pandemic disease whose name is HIV/AIDS, and the people too who are living with the HIV/AIDS. My dear students, don't take these things very much easy, because the HIV/AIDS is a very severe pandemic disease. Till now we are not having an appropriate treatment for this disease. That's why it's very important for all of us, not for the health professionals. It's very important for all the community members to create awareness among the people of the community, friends, and each and every person of this world. So when we create awareness, when we make the people aware about this dangerous disease, which is not till now, for which we are not having a treatment, then we contribute towards the patient who are living with the HIV/AIDS and towards the lives who lost their lives with this disease. And honorable guests, good afternoon. I stand before you today with a sense of responsibility and purposes as we come together to observe World AIDS Day. This day holds greater significance in our global community, reminding us of the points battle against HIV/AIDS and of importance of unity, awareness and compassion. World AIDS Day commemorates on the first consumer HIV/AIDS service as a powerful, reminding that HIV/AIDS is not just a health issue, but a shared global challenge. It is a day to honor the memories to जिन उस्ताज़ा इकराम की बदौलत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके ऊपर चंद अशार तो बनते हैं। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे इन्होंने अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे इन्होंने अनजान बना दिया। इनकी ऐसी मेहरबानी हुई के उस्ताद जी ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया, उस्ताद जी ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया। रोशनी बांटते फिरते हैं ये सूरज की तरह, रोशनी बांटते फिरते हैं ये सूरज की तरह, डूबते हैं तो सितारों को जन्म देते हैं, डूबते हैं तो सितारों को जन्म देते हैं। अब मैं अपने मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने जा रहा हूँ, आप गौर से समाअत फरमाएं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन जैसा कि नाम से पता चलता है HIV के साथ रहने वाले लोगों और एड्स की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले लोगों के लिए अहमियत जाहिर करता है। ये दिन पहली बार 1988 ईस्वी में बनाया गया था। एड्स एक लाइलाज और मोहलक बीमारी है। ये मर्ज HIV वायरस की वजह teacher and honorable guests. Good afternoon to all of you. First of all, thank you. I am Nusrat Naz from Stream X-ray. I am going to give details about AIDS. Diagnosis: HIV can be diagnosed through blood or saliva testing. Available tests include antigen antibody test. These tests usually involve drawing blood from a vein. Antigen or substones on the HIV virus itself and are usually detectable. A positive test in the blood within a few weeks after exposure to HIV. Antibodies are produced by your immune system when it exposed to HIV. It can take weeks to months for antibodies to become detectable. And there are two original also. Hopefully, we'll be celebrating this AIDS, World AIDS Day today in a very wonderful and very nice way. And to my mind, before I speak on the original topic, I was telling you कि भाई सब चीजें जो हैं इल्म हर एक के पास है, इंफॉर्मेशन हर एक के पास है। इल्म वो है जो you put into the practice, आपकी बात करते वक्त, आपके चलते वक्त, आपके काम करते वक्त, आपके पढ़ते वक्त, आपके सोते वक्त। आज एक टीम जो है जो हमको बताएंगे वो हम सबको इस लेवल तक का ज्ञान देंगे और हम अपनी जगह पहल करेंगे कि भाई हम प्रैक्टिकली उस लाइफ को वो कर पाए। एंड विद इट I would request also I was और क्या कहते हैं नाज़रीन, इसी सिलसिला में जिला अस्पताल पुंछ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली की क़यादत में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के अमला और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर भी एड्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल कम हो जाए, तो एड्स का डायग्नोसिस हम तभी बनाते हैं जब सीडी हम एड्स से बच सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारे समाज में जो हम सभी सेहतमंद रहें, उसके लिए हम सबको अपना अपना हमारे से बचा जा सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि मैं आयुष का प्रैक्टिशनर हूं तो मैं ये अर्ज करूं कि क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करता है, तो अगर आप किसी को एड्स में पेशेंट आ जाए, एक तो उसकी यकीन दिलाइए कि आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप भी आप एहतियात करेंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे, तो आप जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ सकता है। जैसे कि कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स ले रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये रहेगा कि आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहने की वजह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं या ज्यादा देर तक आपकी लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ सकता है। तो एक दूसरा ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, एक तो खुद एजुकेट होइए, इंफॉर्मेशन जो है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए, और फिर उसे कम्युनिकेट कीजिए सोसाइटी में। सोसाइटी में जैसे इस साल का थीम है कि हम कैसे लीड कर सकते हैं कम्युनिटी में, हम कैसे कम्युनिटी में लोगों को, जैसे उसमें हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे हमारे पंडित हैं, हमारे जो गुरुद्वारा में जो होते हैं, और जो हमारे मौलाना साहब हैं, वो भी इसको बजाय सोशल स्टिग्मा के वो भी अपनी आवाम को अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं। सेमिनार्स के जरिए, डिबेट्स के जरिए, पैम्फलेट्स जो है हमारा जो उसका ट्रांसमिशन रहती है अपनी बेबी को, और वो ट्रांसमिट कर सकती है, वो ब्रेस्ट फीड करती है, उसमें हो सकता है। तो
इसमें ये है कि मतलब अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये नहीं होगा कि उसको वो एकदम से एड्स हो जाएगा। उसमें पहले बंदे को जैसे खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, रैश हो सकती है, तो वो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो सेल जो HIV वायरस होता है तो बॉडी के अंदर जाके सेल के डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं CD4 जो लिम्फोसाइट्स हैं उन पे एक्ट करता है, उनको कम करना शुरू कर देता है। जब जैसे जैसे वो आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। हर साल 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो ये जो एड्स बीमारी है बड़ी मोहलक बीमारी है, इसका मुकम्मल इलाज कोई नहीं है। ये भी एक वायरस है जिससे ये बीमारी फैलती है। तो जब भी किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको एक किस्म का डेथ सर्टिफिकेट ही मिल जाता है कि ये हमेशा बीमारी रहेगी जब तक कि वो बंदे की मौत ना हो जाए। और इस बीमारी के साथ और छोटे छोटे जो इन्फेक्शन है वो भी इंसान को हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ये बीमारी जो है, सबसे पहला केस हिंदुस्तान में 1986 में देखा गया था। तो जो ही केस हिंदुस्तान में आया, क्योंकि बीमारी बड़ी मोहलक थी, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसका फुल फ्लैज एक NACO नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस पर काम करना शुरू किया कि लोगों को जागृति दी जाए, लोगों को इसके टेस्ट की फैसिलिटी दी जाए, इसका इलाज किया जाए ताकि बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो 86 से लेकर 2000 तक 14 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत इस पर काम किया और इसको जाके बीमारी को हल्ट किया। और उससे भी अभी तक 2000 से भी लेकर आज लास्ट जो सर्वे हुआ 2021 में हुआ, और उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त हिंदुस्तान में 24 लाख केसेस एड्स के मौजूद थे। और हर साल जो नए केस ऐड हो रहे हैं वो 60,000 केसेस हैं, और पूरी तकरीबन 40-42 हज़ार लोगों की डेथ भी सालाना होती है। लेकिन बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। और इस वक्त ये जो वर्ल्ड एड्स डे हमेशा मनाया जा रहा है, इसमें यही होता है कि पब्लिक को जानकारी दी जाए ताकि इस मोहलक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। वही प्रोग्राम आज यहाँ पर किया जा रहा है। शुक्रिया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मुहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।